Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So, today we are going to cover up the next 10 MCQs, which are starting from MCQ number 41. So, MCQ number 41, let's start it. Section 130, Reopening of Accounts on Courts or Tribunals Order of the Companies Act 2013 states that a company shall not reopen its books of accounts and not recast its financial statements unless an application in this regard is made by the central government, the income tax authorities, SEBI, and any other statutory regulatory body or authority or any person concerned, and an order is made by a court of the competent jurisdiction or the tribunal to effect that into the effect Jain Limited, यहाँ पर full stop होना चाहिए, Jain Limited has an annual turnover of rupees 350 crores and has been into losses for the last 2 years. The operations of the company are good. यहाँ तक अभी तक कुछ ऐसा टेक्निकल नहीं आया. सेक्शन 130 के बारे में आ रहा है. सेक्शन 130 अगर आपको पता है तो सेक्शन 130 इज दैट यू कैन open your accounts and you can recast your financial statements if your financial statements were prepared in a fraudulent manner or the affairs of the company were mismanaged and there is a doubt on the reliability of the financial statements. In that case only the financial statements can be recasted, re-prepared, and also this has to be done only if the application has been made by the central government or by the regulatory authorities so as to reopen the accounts and to amend them. Okay, now in this case Jain Limited annual turnover is 350 crores and it has been into losses for the last 2 years. The operations of the company are good. Okay. Now, due to some technology changes, the company started facing competition and hence started incurring losses. The company plans to revive in the next 1 or 2 years with improvements in its processes. During the year ended 31st March 2020, the management of the company came across certain transactions relating to the financial year ended 31st March 2019. तो 2020 को काम करते हुए 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए 2019 की कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस मिली, ठीक है, विच वर एररनेसली मिस्ड टू बी अकाउंटेड फॉर. मतलब अकाउंटिंग करना ही भूल गए 2019 में और इस चीज़ का पता कब चल रहा है 2020 में. This would result into losses and hence the management is considering to take this to the right financial year and for that purpose to reopen its accounts for the financial year ended 31st March 2019. Please advise. मैनेजमेंट कह रही है कि अगर हम 31st मार्च 2019 वाली ट्रांजैक्शंस को 31st मार्च 2020 में अकाउंट फॉर करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से 31st मार्च 2020 में भी कंपनी के काफ़ी ज़्यादा लॉसेस आ जाएंगे. तो इस वजह से वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू reopen their accounts of 31st March 2019 so that they can put the transactions back in that particular year. तो इस केस में आप बताओ क्या मैनेजमेंट सही कर रही है, क्या मैनेजमेंट का रीओपन करने का रीज़न अप्रोप्रिएट है, वैलिड है एज पर सेक्शन 130? नो, इट इज़ नॉट वैलिड. क्यों? क्योंकि सेक्शन 130 में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कब कब आप ऐसा करोगे. यहाँ पर जो गलती हो गई है वो एररनेसली हुई है. कोई फ्रॉडुलेंट मैनर में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नहीं बनाया था, ना ही आपके कंपनी के अफेयर्स मिसमैनेज्ड थे जिसकी वजह से हम आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर कोई उसकी रिलायबिलिटी पर कोई डाउट हो. ऐसा कोई रीज़न नहीं है. ये तो ये कह रहे हैं कि इस साल लॉसेस ना दिखे इसीलिए ट्रांजैक्शंस को वापस उसी साल में पहुंचा देते हैं. नो, दिस इज़ नॉट राइट, दिस कैन नॉट बी डन. तो यहाँ पर मैनेजमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है. तो लेट्स चेक किस ऑप्शन के अंदर ये आंसर दे रखा है. The position of the management is correct. No, the position of the management is not correct. So this is not the correct option. Second is the action of the management is correct. However, the reason behind reopening the accounts of last year does not seem to be correct. No, का मैनेजमेंट सही है ही नहीं, रीज़न भी गलत है और मैनेजमेंट सही कर भी नहीं रही है एज पर सेक्शन 130.
The action of the management would have been correct, सही होता, had it been advised by the auditors of the company, and for the same, management should have taken approval from SEBI. No, there is no such thing mentioned in section 130. The action of the management is not correct. Correct. This is the correct option. The management did not do or did not think the right way. Okay. So the answer of question number 41 is D. Let's move to question number 42. रिमी लिमिटेड was set up initially as a private limited company. अब रिमी लिमिटेड बन गई है, मतलब ये एक पब्लिक कंपनी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वर्ड लिमिटेड मेंशन्ड है, तो इट इज़ अ पब्लिक कंपनी नाउ. पर इनिशियली जब बनी थी दैट वाज अ प्राइवेट कंपनी. सब्सिक्वेंटली इट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक कंपनी. यहाँ पे मेंशन भी कर दिया उन्होंने. The company's management has plans of expansion, but the business was not growing in an organic manner. Therefore, the management decided to acquire the competitors. During the financial year ended 31st March 2020, the company acquired 2 companies in India and France in September. तो 2 कंपनीज एक्वायर करी इंडिया और फ्रांस के अंदर. कब एक्वायर करी? सितंबर 2019 में और जनवरी 2020 में. मतलब इंडिया वाली सितंबर में करी थी और फ्रांस वाली जनवरी 2020 में करी थी. The company controls both. Okay. The company controls both of these companies as per the criteria laid down in Companies Act 2013 as well as the applicable accounting standards. The management started discussions with the auditors regarding the audit, wherein it was also pointed out by the auditors that management should also prepare the consolidated financial statements if they want. Management needs your advice on the same. तो auditors ने बोला अगर आप चाहो तो आपको बनाने की ज़रूरत है, आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी चाहिए. ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं. मैनेजमेंट हमारी एडवाइस मांग रही है, ऑप्शंस क्या है उस हिसाब से वी आर गोइंग टू डिसाइड. फर्स्ट ऑप्शन इज मैनेजमेंट मस्ट प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. चलो ऑप्शंस पढ़ने से पहले लेट अस क्विकली सी हमारा क्या ओपिनियन है इसके ऊपर. यहाँ पर मैनेजमेंट ने 2 कंपनीज को एक्वायर किया है, एक इंडिया की कंपनी है, एक फ्रांस की कंपनी है. इस केस में ऑडिटर क्या कह रहे हैं कि ऑडिटर बोल रहे हैं कि अगर मैनेजमेंट चाहती है तो वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ले. पर आप बताओ, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना अगर मैंडेटरी है तो क्या यहाँ पर चॉइस की कोई ऑप्शन आती है क्या? नहीं. यहाँ पर बताया है कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये पूरा का पूरा कंट्रोल एक्सरसाइज कर रही है दोनों कंपनीज पर. जब भी कंट्रोल एक्सरसाइज होता है तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की रिक्वायरमेंट है. तो यहाँ पर ऑडिटर्स ने ये बात गलत बोल दी कि अगर मैनेजमेंट चाहती है तो वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ले. नो, द ऑडिटर्स एडवाइस इज नॉट रॉन्ग. मैनेजमेंट शुड प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, दे हैव टू प्रिपेयर. सो लेट्स चेक ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं. फर्स्ट ऑप्शन हमने रीड कर दिया था, यहाँ पर लिखा था मैनेजमेंट मस्ट प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. सेकंड ऑप्शन इज मैनेजमेंट हैज अ चॉइस नॉट टू प्रिपेयर. तो यहाँ पर यह ऑप्शन गलत हो गया ऑटोमेटिकली. Management could have prepared CFS if acquired companies would have completed at least 1 year post acquisition. क्या ऐसी कोई भी कंडीशन है कंसोलिडेशन करने के लिए? No, there is no such condition. Next is management must prepare CFS, but it should include only the company acquired in India. No, ऐसा नहीं होता कि अगर हमने फॉरेन कंपनी को एक्वायर किया तो उसका कंसोलिडेशन नहीं होगा. नो, कंपनी चाहे इंडिया की हो चाहे बाहर की हो, कंसोलिडेशन होगा ही होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. SKG Private Limited has an annual turnover of rupees 200 crores and profits of rupees 25 crores. The company is engaged in the business of textiles and has fairly stable operations over the years. There has not been much growth in the company in the last few years despite the attempts of the management. Currently, the management is more focused towards the cost cutting. Cost cutting पर उनका focus है and has been considering all the options to achieve that objective. What is the objective? Cost cutting, जिससे कि they can grow. Okay. Now, the statutory auditors of the company have been auditing the financial statements for the last 3 years and have issued clean reports over these years. Okay.
During the financial year ended 31st March 2019, the management got a large project from a new customer, which resulted in significant increase in the turnover of the company. However, the profitability of the company did not improve much because the margins in the contract were not high. हो सकता है टर्नओवर बढ़ गई क्योंकि सेल्स का अमाउंट ज़्यादा था, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज था उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में वो काफ़ी कम था, जिसकी वजह से हमारी टर्नओवर में तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज आ गया, बट हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा. Now, the statutory auditors, during the course of their audit of financial statements for the financial year ended 31st March 2019, that is the 4th year of audit, did not agree with the revenue recognition criteria followed by the company. Since the matter was significant, a lot of discussion debates happened between the auditor and the management. But it was finally agreed that the auditors would qualify their audit report. Auditors wanted the management that the management should explain this matter in detail in the notes to accounts to the financial statements over which the auditors are qualifying the audit report. Auditor ने बोला हम जिस मैटर पर ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन दे रहे हैं आप उस मैटर को एक्सप्लेन कर दो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर. However, the management had a different view. Management said that if the auditor is qualifying his report, then why should the management also highlight that matter in the financial statements, and hence refused to include any note for the same. Okay, till here. On account of the conflict, since audit is not getting concluded, you are required to suggest how the matter get resolved. अब एक बात बताओ, यहाँ पर क्या ऑडिटर सही बोल रहे हैं कि क्योंकि मैनेजमेंट बेसिकली यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ का है? कॉन्फ्लिक्ट इस चीज़ का है कि ऑडिटर कह रहे हैं कि आप उस मैटर को अपने नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा दो जिस पर हम क्वालिफिकेशन दे रहे हैं, बट मैनेजमेंट कह रहे हैं कि हम नहीं दिखाएंगे. हम क्यों दिखाएं? जब ऑडिटर ऑलरेडी क्वालिफाई कर रहा है तो वाई शुड वी इंक्लूड दिस मैटर इन आर नोट्स टू अकाउंट. तो इस चक्कर में दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है. नाउ इन दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो रहा, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. नाउ इन दिस केस यू टेल मी, आप इसको कैसे रिजॉल्व करोगे? इस केस में सबसे पहली चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि क्या इट इज़ नेसेसरी कि अगर ऑडिटर क्वालिफाइड रिपोर्ट दे रहा है तो उस मैटर का डिस्कशन, उस मैटर से रिलेटेड पॉइंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स टू अकाउंट्स में होना कंपलसरी है क्या? नो, कंपलसरी नहीं है. लेकिन अगर मैनेजमेंट इस चीज़ को अपने नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा देती है तो इससे यूजर्स को पता चल जाएगा कि जिस चीज़ पर ऑडिटर क्वालिफाई कर रहे हैं ना, हमारा उस पर क्या एक्सप्लेनेशन है या क्या स्टैंड है. ठीक है, तो अगर मैनेजमेंट ऐसा करती है तो मैनेजमेंट के लिए ही अच्छा है. तो मैनेजमेंट इस चीज़ में गलत सोच रही है कि हम ऐसा क्यों करें. तो आप अपनी खुद के लिए ही स्टैंड ले रहे हो, एक्सप्लेनेशन दे रहे हो. ठीक है, नहीं इंक्लूड करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑडिटर को इस बात पर रुकना नहीं चाहिए अपनी रिपोर्ट्स को इशू करने से, क्योंकि ये कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है कि इस बारे में नोट्स टू अकाउंट्स में मेंशन होना चाहिए तभी वो क्वालिफिकेशन दे पाएंगे. नो, आप अपनी रिपोर्ट बनाओ, बेसिस फॉर क्वालिफिकेशन में डालो कि क्या रीज़न है, एंड दैट्स ऑल. वेदर द मैनेजमेंट डिस्क्लोजेस द सेम इन द नोट्स टू अकाउंट्स और नॉट, इट इज़ देयर डिस्क्रिशन, बट डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द मैनेजमेंट इफ द मैनेजमेंट डिस्क्लोजेस द सेम. Why? Because they will be able to explain their point of view why they have done a particular thing to which the auditors are qualifying. ठीक है, तो let's see options क्या क्या दे रखे हैं. आई होप आपको क्वेश्चन और क्या चीज़ होनी चाहिए थी वो समझ आ गया होगा. Now let's read the options. You are required to suggest how the matter gets resolved. Now first option क्या है? In the given situation, if the management does not agree to give a note in the financial statements, then the auditor should not hold the report. However, in such a case, the auditor would need to give a disclaimer of opinion in his report instead of qualification. देखो, यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर मैनेजमेंट रिपोर्ट में अपनी नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर नहीं देती तो ऑडिटर को रिपोर्ट को नहीं रोकना चाहिए. ये बिल्कुल ठीक बोल रखा है. लेकिन इस केस में ऑडिटर को कहना चाहिए कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है. क्यों? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का मतलब क्या होता है? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का मतलब होता है कि हम कंक्लूड ही नहीं कर पा रहे किसी बात पर, हमें एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिल पाए इस बात को प्रूव करने के लिए, कि कंक्लूड करने के लिए कि ऑडिट करने के बाद कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे पा रही हैं या नहीं. बट यहाँ पर तो ऑडिटर्स क्लियर है ना इस बात से कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही हैं. उनके नोट देने से और ना देने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था. तो यहाँ पर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन वाली बात गलत दे दी इन्होंने.
ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन। इसलिए फर्स्ट वाला गलत हो गया, वो समझ आ गया होगा आपको। सेकंड वाले पे आ जाते हैं। द आर्ग्यूमेंट ऑफ द मैनेजमेंट सीम्स करेक्ट। Auditor cannot do both the things, that is to qualify and then also get that highlighted in the financial statements. That note would not be beneficial to the users. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर डिस्क्लोज होने के बाद भी ऑडिटर कोई पॉइंट देना चाहता है तो वो दे सकता है, इसमें ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। In case of such matters related to revenue recognition, it is always better to give a detailed explanation in the notes to accounts to the financial statements. If the explanation is satisfactory, then the auditor should consider giving the emphasis of matter instead of qualification. देखो, इस केस में emphasis of matter की बात करें तो emphasis of matter में क्या होता है कि अगर हमने कोई भी इंफॉर्मेशन को सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन के अंदर जब आपके इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो मटेरियल होते हैं पर परवेसिव नहीं होते, उस केस में आप क्वालिफिकेशन देते हो। अदरवाइज एडवर्स ओपिनियन दी जाती है जब भी आपकी जो भी मिस स्टेटमेंट्स हैं वो परवेसिव प्लस मटेरियल होती हैं, आपको पता होगा, और आप एविडेंसेस भी गैदर कर पा रहे हो। तो इस केस में अनक्वालिफाइड रिपोर्ट इशू करने का तो मतलब ही नहीं है। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता क्वालिफिकेशन का, इसी वजह से ये पॉइंट आपका गलत हो गया। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा अगर आपको देना है तो दे दो, लेकिन क्वालिफिकेशन के बदले एम्फेसिस ऑफ मैटर देना ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आपको पता होगा, अपने एसेज पढ़ रखे होंगे, उसके अंदर क्लियरली मेंशन्ड है ये पॉइंट। नाउ 700 सीरीज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इस सीरीज़ को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। वाई? बिकॉज इसकी वजह से ही आपको समझ आता है कि रिपोर्टिंग कैसे होती है। अगर आपको रिपोर्टिंग नहीं पता स्टैंडर्ड्स के अंदर तो आपको काफ़ी सारे आंसर्स में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब भी हम स्टैंडर्ड्स के आंसर्स करते हैं तो उसके अंदर इट इज़ एडवाइजेबल कि हम रिपोर्टिंग से रिलेटेड भी पॉइंट देते, क्योंकि उसका भी मार्क्स अलॉटेड होते हैं। अगर आपने कभी भी आंसर शीट सजेस्टेड आंसर्स देखे हों तो रिपोर्टिंग से रिलेटेड भी देर इज़ मार्क्स अलॉटेड फॉर राइटिंग द रिपोर्टिंग पोर्शन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन में 700 सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडिटर इज बेनिफिशियल फॉर द कंपनी बिकॉज बाय गिविंग एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैटर ऑन विच द ऑडिटर हैज गिवन अ क्वालिफिकेशन in the notes to accounts, the management would be able to explain their perspective, their point of view to the users of the financial statements. In that case, auditor, while giving the qualification, can give a reference to the notes to accounts. Otherwise, the entire matter would form part of the audit report. अब auditor को क्या है, ये सारी चीज़ें audit report के अंदर mention करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ भी financial statements के अंदर mention नहीं है। But हाँ, अगर वो मेंशन कर देते हैं तो वेल एंड गुड है, और उसके बेसिस पर हम एक रेफरेंस दे देंगे कि ये पर्टिकुलर मैटर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन मैनेजमेंट ने कहाँ पर दी हुई है, इन द नोट्स टू अकाउंट्स। बट लेकिन अगर मैनेजमेंट ऐसा नहीं करती तो भी क्या हमें रिपोर्ट रोक लेनी चाहिए? नहीं। अगर नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर नहीं देते हैं, स्टिल वी आर गोइंग टू इशू द रिपोर्ट। However, the auditor should not hold report if the management does not want to give any explanation in the notes to accounts. तो रिपोर्ट होल्ड नहीं करनी चाहिए इस चक्कर में। ऑब्वियसली वो मैनेजमेंट के लिए ही अच्छा होगा और ऑडिटर का भी थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, क्योंकि वो रेफरेंस दे पाएगा। बट इसकी वजह से कोई वैलिड रीज़न नहीं है। नॉन डिस्क्लोजर इज नॉट अ वैलिड रीज़न फॉर नॉट इशूइंग एनी रिपोर्ट। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप, आई होप आपको ना सारे पॉइंट्स पर भी समझ आया होगा कि हमने कौन सा ऑप्शन क्यों चूज नहीं किया है। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। A significant deficiency exists in the process of flow of approval of travel reimbursements in the of the officials. This was communicated in the previous year to TCWG and no remedial action was taken on the same so far. The auditors are of the opinion that it needs to be communicated again. मैं फिर से रीड कर रही हूँ इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा अच्छे से नहीं हो पाया। A significant deficiency exists in the process of flow of approval of travel reimbursements of the officials. This was communicated in the previous year to TCWG and no remedial action was taken on the same so far. The auditors are of the opinion that it need not be communicated again. Is the opinion of the auditors on not to communicate the deficiency in internal controls reported in the previous year correct? तो आपसे पूछा जा रहा है essay 265 से रिलेटेड क्वेश्चन, कम्युनिकेटिंग द डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल्स टू TCWG एंड मैनेजमेंट। इस केस में अगर हम देखें तो ऑडिटर जो प्रीवियस ईयर ऑडिटर था और जो करंट ईयर ऑडिटर है वो
सेम है। तभी वो कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में हमने TCWG को एक मैटर कम्युनिकेट किया था। क्या मैटर था कि आपका जो ट्रैवल रीइंबर्समेंट्स का अप्रूवल प्रोसेस है ना, उसमें कुछ डेफिशिएंसी है, बट नो रेमेडियल एक्शन वाज टेकन बाय द मैनेजमेंट और द TCWG प्रीवियस ईयर, एंड सिंस इट वाज कम्युनिकेटेड प्रीवियस ईयर, द ऑडिटर्स आर थिंकिंग दैट देयर इज नो नीड टू कम्युनिकेट इन दिस ईयर बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी बीन कम्युनिकेटेड। तो क्या इस केस में ऑडिटर्स करेक्ट हैं इन नॉट कम्युनिकेटिंग द डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल्स विच वर रिपोर्टेड इन द प्रीवियस ईयर? सो इस केस में आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से ऑडिटर सही नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि हर साल के ऑडिट के अंदर आप ये नहीं देखोगे क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर कर दिया था इस साल मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर करने के बावजूद जब कोई रेमेडियल एक्शन नहीं आया और वो डेफिशिएंसी स्टिल एग्जिस्ट कर रही है तो डेफिनेटली यू हैव टू कम्युनिकेट। तो दैट इज व्हाई द ऑडिटर इज नॉट correct over here in not communicating the matter which was previously discussed. Okay, so let's check the options and select the correct one. Yes, the auditor is not required. पहली गलत हो गया. No, the current year's communication may repeat the description from the previous communication or simply the reference to the previous communication. ये बिल्कुल ठीक लग रहा है कि या तो आप दोबारा से बता दो उनको या फिर सिंपली आप पिछले साल का जो आपने कम्युनिकेशन किया था उसका एक रेफरेंस दे दो। बोथ ऑफ देम विल डू, है ना? तो देना लेकिन पड़ेगा, ये चीज़ बिल्कुल सही है। तो देखो यहाँ पर येस वाले ऑप्शंस तो आप पहली काट दो क्योंकि गलत है, क्योंकि ऑडिटर वॉज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट। डी ऑप्शन और पढ़ लेते क्योंकि इसमें भी यहाँ पर नो दे रखा है। नो, इट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड अगेन बट एन ओरल रिमाइंडर टू TCWG। ओरल रिमाइंडर तो कभी भी सफिशिएंट होता ही नहीं है, एवरीथिंग शुड बी इन राइटिंग। तो यहाँ पर डी ऑप्शन भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है? ऑप्शन इज बी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 45. BC Limited is the business of manpower consulting. The company has a huge cash and bank balance including FDs with banks. During the course of audit of financial statements of the company for the year ended 31st March 2021, the auditors circulated independent bank balance confirmations. The auditors received all the bank balance confirmations covering the fixed deposits also independently. तो यहाँ पर आपने क्या ली होंगी? External confirmations ली होंगी, SA 505. Auditors observed that the fixed deposit balances as per the independent balance confirmation did not match with the book balances in some cases. Management produced the fixed deposit certificates to the auditors wherein the balance of the fixed assets matched with the balances as per books. How should the auditor deal with this matter? So ये तो बड़ा अजीब सा मामला हो गया। ऑडिटर्स ने बैंक बैलेंस कन्फर्मेशंस मांगी, वहाँ पर कुछ बैलेंस आ रहा था और बुक्स में कुछ और बैलेंस आ रहा था, लेकिन जो बुक्स में बैलेंस आ रहा था उसका प्रूफ मैनेजमेंट के पास था और वो प्रूफ क्या था? फिक्स्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, जिससे वो बैलेंस मैच हो रहा था। अब इस केस में बताओ एज एन ऑडिटर आप क्या करोगे? आपने एक प्रोसीजर अप्लाई किया। प्रोसीजर क्या था? एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस ली जिससे कि आप उस बैलेंस को वेरीफाई कर पाओ, ठीक है, बट एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लेने के बावजूद आपकी कोई क्वेरी सॉल्व नहीं हुई। इस केस में आप क्या करोगे? जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो हमें दूसरा रास्ता लेना पड़ता है, मतलब हमें ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ते हैं। तो लेट्स सी ऑप्शंस क्या, उसके बेसिस पर वी आर गोइंग टू डिसाइड व्हाट इज द आंसर। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक रास्ता आपका बंद हो गया, क्या? एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लेना। कन्फर्मेशन के बेसिस पे ऑब्वियसली हमेशा ऐसा होता है कि आपका प्रूव हो जाता है कि हाँ ठीक है या गलत है, बट अगर कंफर्मेशन मिलने के बावजूद देयर इज अ कंफ्यूजन स्टिल एग्जिस्टिंग, देन इन दैट केस यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द अदर प्रोसीजर्स और अदर वेज दैट can provide you more reliable evidence. Okay, let's read the options. Auditor should qualify the audit report in respect of differences in the book balances of FDs with independent balance confirmation. तो मेरे हिसाब से qualification is not the solution. Why? Because the management is providing you the evidence that the book balances and the fixed deposit certificates match with each other. कोई छोटा मोटा एविडेंस नहीं है, वो भी बिल्कुल सही बोल रहे हो सकते हैं, तो इसीलिए हमें क्वालिफाई तो नहीं करना चाहिए on the basis of what information which is being given in the question. Now, auditor should consider the fixed deposit certificates produced by the management and basis that any differences in book balances should be ignored. क्या आप इग्नोर कर दोगे? डिफरेंस तो आ रहा है ना, क्या आप इस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाओगे कि मैनेजमेंट ने जो सर्टिफिकेट दिखाया है उसमें कुछ बैलेंस आ रहा है और वो बुक से मैच हो रहा है, तो जो ठीक है, लेकिन वॉट उसका क्या, जो आपने कन्फर्मेशंस ली हैं, अगर उसके कन्फर्मेशन से बैलेंस मैच नहीं हो रहा तो आपके दिमाग में डाउट रहेगा या नहीं? बिल्कुल डाउट रहेगा। तो आप इग्नोर कैसे कर सकते हो? इग्नोर तो आप नहीं कर सकते। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग।
Now, auditor should consider the documentation provided by the management, that is the fixed deposit certificates. However, independent balance confirmation is also required to be considered. यहाँ तक बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि दोनों चीज़ों को कंसिडर करना ज़रूरी है, हम एक को भी छोड़ नहीं सकते. Which shows various difference. The auditor should obtain balance confirmations again. वो कह रहे हैं कि दोबारा से confirmation लेकर देखो. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस वाले ऑप्शन में भी, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है. पर एक बात बताओ, अगर बैलेंस कंफर्मेशन दोबारा लेने पर भी सेम बैलेंस ही हमें मिल रहा है तो क्या करोगे? सोल्यूशन नहीं मिला ना, तो इसीलिए हमें कुछ सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, तब हम मानेंगे कि हाँ ठीक हो गया. देखो, अगर ऑप्शन डी में भी कुछ बकवास दे रखा होगा तो ऑप्शन सी सही करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द बेस्ट वन आउट ऑफ द 4. बट अगर ऑप्शन डी कुछ ऐसा कह रहा है जो इससे ज़्यादा अच्छा है तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा. अभी तक तीनों ऑप्शन में से सी ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है, बट स्टिल थोड़ी सी एम्बिग्विटी है बिकॉज ऑफ दिस वर्ड कि अगर हमें दोबारा लेने पर भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो क्या करेंगे. ठीक है, लेट्स सी डी ऑप्शन क्या है. Auditor should consider the documentation provided by the management, that is the fixed deposit certificates. However, independent balance confirmation is also required to be considered by the auditor. बिल्कुल ठीक बोला है. Now, the auditor should look to perform the alternate procedure and basis that matter should be looked at. तो बताओ यहाँ पर क्या बोला, ऑल्टरनेट प्रोसीजर अप्लाई करके देखो, उसी चीज़ को दोबारा करने की बजाय दूसरा रास्ता देखो. क्या पता किसी और तरीके से आपको पता चल जाए कि वो बैलेंस मैच हो रहा है या नहीं हो रहा. तो इसीलिए ये वाला आंसर मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर बताया है कि अगर ये वाली चीज़ नहीं काम करी तो भी ये तो काम करेगा ही करेगा. तो इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. ओके, लेट्स मूव फर्दर. Question number 46. While auditing the complete set of consolidated financial statements of Tulips Limited, a listed company, using the fair presentation framework, Messrs. Pinto and Company, a chartered accountant firm, discovered that the consolidated financial statements are materially misstated due to the non-consolidation of subsidiary. Subsidiary की consolidation ही नहीं करी. Wow. The material misstatement is deemed to be pervasive to the consolidated financial statements. The effects of misstatement on the consolidated financial statements have not been determined because it was not practicable to do so. Thus, Messrs. Pinto and Company decided to give an adverse opinion for the same and further determined that there are no key audit matters other than the matters to be described in the basis for adverse opinion section. Comment whether Messrs. Pinto and Company needs to report under SA 701 communicating the key audit matters in the auditor's report. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पर बेसिकली द प्रॉब्लम इज़ कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि SA 701 के हिसाब से whether they need to give the key audit matter para or not. तो अगर आपको SA 701 पता है, SA 701 में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी लिस्टेड एंटिटी होती है तो उस केस में देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट दैट यू हैव टू गिव व्हाट, यू हैव टू गिव द की ऑडिट मैटर पैरा, यू हैव टू गिव द की ऑडिट मैटर इफ़ यू आर अ लिस्टेड कंपनी. या फिर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिटर को लगता है कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं टू बी हाईलाइटेड, उस केस में ऑडिटर की ऑडिट मैटर पैरा देता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर. लेकिन उसमें एक बात और लिखी थी कि अगर कोई डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के केस में यू कैन नॉट गिव दी की ऑडिट मैटर पैरा. ठीक है, बट यहाँ पर कौन सी ओपिनियन दी जा रही है, यहाँ पर एडवर्स ओपिनियन दी जा रही है. अब एडवर्स ओपिनियन देने का मतलब क्या हो गया कि आपको की ऑडिट मैटर पैरा देना पड़ेगा, क्योंकि एडवर्स ओपिनियन का मतलब होगा कि की ऑडिट मैटर पैरा आप दे सकते हो. ठीक है, अभी तक आपके लिए ओपन है SA 701. दूसरी चीज़ अगर आप कंसिडर करो तो ये एक लिस्टेड एंटिटी है. लिस्टेड एंटिटी के केस में देयर इज़ अ मैंडेटरी कंपल्शन है, मैंडेटरी कंडीशन है कि आपको डालना ही पड़ेगा SA 701 का पैरा. ठीक है, तो लेट्स सी, यहाँ पर ऑडिटर्स जो है वो नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि हम कोई की ऑडिट मैटर्स नहीं है तो देने की ज़रूरत नहीं है. बट लेट्स सी, हम ऑप्शंस देखते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे. Messrs. Pinto and Company have the option to follow, thus need not. तो ये तो गलत हो गया. क्यों? क्योंकि 701 में स्पेसिफिकली लिखा है कि लिस्टेड एंटिटीज़ के केस में तो आपको देना ही पड़ेगा. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. SA 701 is mandatory in cases of audit of listed entities. बिल्कुल सही. However, there are no key audit matters other than the matter described in basis for adverse opinion section. No key audit matter para needs to be stated in the audit report. गलत हो गया.
क्यों? क्योंकि सिंस इट इज़ मैंडेटरी तो आपको उसका रेफरेंस तो देना पड़ेगा ना, चाहे फिर उसके अंदर आप लिख दो कि कोई की ऑडिट मैटर नहीं है, बट आपको लिखना तो ज़रूर पड़ेगा, अपनी रिपोर्ट के अंदर उसकी हेडिंग तो डालनी ही पड़ेगी, तो इसीलिए यहाँ पर ये गलत हो गया. SA 701 is mandatory in case of audit of listed entities. However, there are no key audit matters other than the matter described in the basis for adverse opinion section. Messrs. Pentum and Company shall state under key audit matter para that except for the matters described in the basis for opinion section, we have determined that there are no other key audit matters to be communicated in our report. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, उसका हेडिंग, उसका पैरा तो आपको देना पड़ेगा, चाहे उसके अंदर आप मेंशन कर दो कि कोई भी की ऑडिट मैटर नहीं है, बट सिंस इट इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी, अगर ये लिस्टेड एंटिटी नहीं होती तो उस केस में देयर इज़ नो कंपल्शन कि आप इस पैरा का हेडिंग डालो ही डालो. इसकी रिक्वायरमेंट तभी आती है जब स्पेसिफिकली दो रीजंस हो, लिस्टेड एंटिटी हो या फिर ऑडिटर की नज़र में कोई ऐसे मैटर्स हैं जो कि यूजर्स के लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उसको हाईलाइट करना ज़रूरी है. ठीक है, डीबी पढ़ लेते हैं. Messrs. Pinto and Company is under compulsion to follow, बिल्कुल ठीक, as the audit is of a listed company and shall report key audit matter para same as stated in adverse opinion para regarding नहीं, ऐसा देने की ज़रूरत नहीं है. आपको दोबारा से वो पूरा कॉन्टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक रेफरेंस दे सकते हो कि उन मैटर्स के अलावा देयर इज़ नो अदर थिंग विच नीड्स टू बी हाईलाइटेड. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. Let's move on to the next question, which is question number 47. In case of GST audit by tax authorities, the registered person shall be informed by way of notice not less than dash working days prior to the conduct of audit. Select the correct option. तो ये तो काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर ऑडिट अंडर फिस्कल लॉज, स्पेसिफिकली इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, तो इसके लिए तो करेक्ट आंसर बी है, क्योंकि 15 वर्किंग डेज का आपको प्रायर नोटिस देती है टैक्स अथॉरिटीज़ ऑडिट कराने से पहले. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बहुत क्लियर है. 47th क्वेश्चन में द करेक्ट आंसर इज 15 वर्किंग डेज. नेक्स्ट क्वेश्चन. Messrs. Jamwant Gyms Private Limited is having 4 branches across India. Its branch-wise turnover during financial year 2018-19 is मुंबई की है 3.65, दिल्ली की है 1.65, चेन्नई की है 2 crores and कैलकाटा की है nil. The company would subject to audit under section 35(5) of CGST Act. Select the correct option. तो आपको पता होगा GST के अंदर पैन बेस्ड टर्नओवर निकाली जाती है, एग्रीगेट टर्नओवर का कॉन्सेप्ट होता है, उसके बेसिस पर यू डिसाइड कि ऑडिट आपके ऊपर, जीएसटी ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं. तो फाइनेंशियल ईयर वैसे तो ऑडिट की जो लिमिट होती है वो होती है 2 crores, है ना, लेकिन अगर आपकी टर्नओवर, बेसिकली ऑडिट के लिए जो आपकी टर्नओवर लिमिट होती है वो 2 crores की होती है, बट फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंड फाइनेंशियल ईयर 19-20 इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड एंड इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू 5 crores. तो इस केस में अगर हम इनकी टर्नओवर का टोटल निकालें तो 3.65 प्लस 1.65 प्लस 2 इज इक्वल टू 7.3 crores. तो एक पर्टिकुलर पैन पर कितनी एग्रीगेट टर्नओवर है 7.3 विच इज़ एक्सीडिंग 5 crores. तो इसका मतलब इस पर ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा. तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या सारी ब्रांचेस पर ऑडिट एप्लीकेबल होगा या फिर सिर्फ उन ब्रांचेस पर एप्लीकेबल होगा जिनकी लिमिट एक्सीड कर रही है या फिर जिसके अंदर कुछ टर्नओवर है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो एक ब्रांच में तो कोई टर्नओवर ही नहीं है, तो क्या इस पर जीएसटी ऑडिट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा. तो द करेक्ट आंसर इज होगा. क्यों? क्योंकि हम जब एप्लीकेबिलिटी चेक कर रहे होते हैं तब हम सारे एग्रीगेट करते हैं टर्नओवर का, लेकिन एक बार ये वो एप्लीकेबल हो जाए तो वो हर एक ब्रांच पर एप्लीकेबल हो जाता है. तो ये तो आपने प्रोविजन ऑलरेडी पढ़ भी रखा होगा चैप्टर के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है. बट ट्रिक क्या है, ट्रिक की पॉइंट ये है कि यहाँ पर नील दे रखे टर्नओवर, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना. Even though the turnover is nil of this branch, but since the aggregate turnover of all the branches is exceeding the limit, in that case all the branches are subject to GST audit. So let's see which is the correct option. Only Mumbai Chennai? No, this is incorrect. अब इन्होंने इसे मुंबई चेन्नई ही क्यों दिया? इन्होंने सोचा कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि 2 करोड़ और 3.65 करोड़ है तो एक्सीडिंग इंडिविजुअल लिमिट्स हैं, इसलिए शायद हम ये टिक करते हैं ऑप्शन. बट नो, हमें इंडिविजुअल लिमिट्स नहीं देखनी होती, हमें एग्रीगेट टर्नओवर देनी होती है. None of the branch would be subject to audit. This is incorrect. All the branches would be subject to audit except Calcutta. तो no, Calcutta की भी branch का audit होगा. So the correct option would be D. Why? Because it has been mentioned all the branches would be subject to audit. ठीक है. So we have completed for total 8 questions for today.
Let's do the last two questions also. Question number 49. AV Limited is in the business of manufacturing of chemicals and has a net worth of 700 crores. The company has been preparing its financial statements as per Ind AS. For the purpose of Form 3CD, management did not identify any items which may require adjustments because of the differences between Ind AS and ICDS. However, the tax auditors during the course of their audit identified few items where adjustments were required to be made. Accordingly, should be reported under clause 13E of Form 3CD. Further, tax auditors also are of the view that disclosures in respect of ICDS shall be made in clause 13F of Form 3CD, which the management has not done. देखो इस क्लॉज के अंदर तो आपको डिस्क्लोजर्स करने ही होते हैं, चाहे आपकी कोई एडजस्टमेंट होती है या नहीं होती, बट मैनेजमेंट ने हो सकता है ये सोचा होगा क्योंकि हमें 13E में कोई भी डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं है तो 13F में भी नहीं करना. नो, 13F में तो आपको करना ही था, इवन दो यू हैव नॉट डिस्क्लोज एनीथिंग इन क्लॉज 13E. पर ऑडिटर के हिसाब से तो 13E के अंदर भी डिस्क्लोजर्स होनी चाहिए थे क्योंकि देयर वर एडजस्टमेंट्स. नाउ लेट्स सी, in this case please suggest which one of the following would be the correct option. तो हमें बताना है कि सारे ऑप्शंस में से करेक्ट वाला कौन सा है. तो आपको क्या लगता है, अगर यहाँ पर देखें तो सिंस मैनेजमेंट ने 13E 13F दोनों के अंदर कोई भी डिस्क्लोजर्स नहीं दिए, जबकि ऑडिटर के हिसाब से देयर वर एडजस्टमेंट्स इन क्लॉज 13E एंड 13F में भी उनको डिस्क्लोजर्स करने की जरूरत थी, विच वॉज राइट. 13F में तो वैसे भी उनको डिस्क्लोजर करना पड़ता इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे हैव मेड एनी एडजस्टमेंट इन 13E और नॉट, बट 13E में भी करना है. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए 13E 13F दोनों के अंदर the adjustments and the disclosures are required to be made. Let's see what are the options given. If the impact of the adjustments related to ICDS identified by the auditor is material, then such adjustments need to be reported in Form 3CD and disclosures in respect of ICDS should in any case be given in Form 3CD. तो देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये बिल्कुल ठीक दे रखा है कि ICDS का डिस्क्लोजर तो करना ही करना था किसी भी केस में, बट यहाँ पर दिया है कि अगर एडजस्टमेंट्स का जो एडजस्टमेंट्स ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करी है उनका इफेक्ट मटेरियल है, उसी केस में एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है. ठीक है. If the impact of adjustments related to ICDS identified by the auditors is immaterial, even then such adjustments need to be reported in Form 3CD. To give disclosures in respect of ICDS is management's choice. देखो ये तो यहाँ ये वाला पार्ट गलत है तो ये बिल्कुल ही गलत हो गया. मैं आपको बताऊंगी मैंने ए वाले ऑप्शन पे कुछ भी अभी तक क्यों नहीं बोला, मैं आपको उसका रीज़न बताऊंगी थोड़ी देर में. अभी पहले सारे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. See, both the impact of adjustments related to ICDS identified by the auditors, whether material or immaterial, and disclosures need to be mandatorily reported in Form 3CD. तो यहाँ पर बोल रहे हैं चाहे फिर adjustment material हो या फिर immaterial हो, आपको दोनों ही केस में डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत थी इन क्लॉज 13E, और वैसे डिस्क्लोजर्स 13F वाला तो आपको देने की ज़रूरत थी ही थी. इन एनी केस आपको 13F वाला तो देना ही था. ठीक है. ICDS and Ind AS don't have any differences and hence the assessment, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, पहले ही काट दो. बहुत ही गलत बात बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं, ICDS Ind AS के अंदर कोई डिफरेंसेस है ही नहीं and hence assessment of the auditor does not seem to be correct, hence no reporting would be required under clause 13E. If there is no reporting under 13E, then reporting under 13F would also not be required. कट कर दो, बिल्कुल ही गलत बात. अब आ जाते हैं, मैंने ए और सी के ऊपर कुछ भी नहीं बोला कि सही क्या है और गलत क्या है, उसका रीज़न है. अगर आप इंस्टीट्यूट के आंसर्स देखोगे तो इंस्टीट्यूट के आंसर्स के अंदर उन्होंने इसका जो करेक्ट ऑप्शन बोल रखा है उनके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन ए है कि अगर एडजस्टमेंट का इफेक्ट मटेरियल है तो ही क्लॉज 13E के अंदर डिस्क्लोजर होना चाहिए, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड. पर मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होना चाहिए वो सी होना चाहिए. उसका रीज़न ये है कि अगर आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ही चेक करोगे क्लॉज 13E और 13F का कंटेक्स्ट, जहाँ पर बताया हुआ है कि क्या क्या रिपोर्टिंग होनी चाहिए, या थोड़ा सा जो बेसिकली 3CD में जो फॉर्म है, 3CD के फॉर्म के अलावा जो उन्होंने अपना कंटेंट दे रखा है, उसमें अगर आप चेक करोगे ना तो लिखा हुआ है 13E में आपको रिपोर्ट करना होता है इफ़ देयर आर एनी एडजस्टमेंट्स. ऐसा नहीं लिखा कि आपको रिपोर्ट तभी करना है जब मटेरियल एडजस्टमेंट है या फिर इमटेरियल है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है. एनी एडजस्टमेंट्स लिखा है. तो मेरे हिसाब से तो
आपको मटेरियल हो या इमटेरियल हो रिपोर्टिंग करनी ही करनी है। तो यहाँ पर सिंस इंस्टीट्यूट ने ए ऑप्शन सही बोला है पर मुझे सी लगता है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू क्लैरिफाई कि आपके हिसाब से क्या सही होना चाहिए, या आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ए या फिर सी, और उसका क्या एक्सप्लेनेशन है। आप प्लीज़ मुझे मेरे साथ वो शेयर करना, जिससे कि पता चल पाए कि मेरी अगर कोई गलती हो रही है तो समझने में, तो मैं भी उसको इम्प्रूव कर पाऊँ, राइट। सो अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट द आंसर इज़ ए, बट अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी सी। देयर इज़ अ डिफरेंस इन माई आंसर। तो आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि मुझे सी ऑप्शन सही लग रहा है। तो आप मुझे प्लीज़ इसके बारे में बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए और उसका क्या रीज़न है, ठीक है। सो ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ ये वाला क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 50। OSK Limited was incorporated on 15th of February 2020. The company chose to prepare its financial statements for the purpose of Companies Act 2013 for the period 15th Feb 2020 to 31st March. तो 1.5 महीने के लिए उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना के लिए सोचा कंपनीज एक्ट के हिसाब से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड हो जाएगा। द कंपनी हैड अ टर्नओवर ऑफ ₹6 crores for the period ended 31st March 2020, which expected to increase to 50 crores for the period April 20 से 31st March 2021। इस साल की क्या 1.5 महीने की टर्नओवर की अगर मैं बात करूँ तो वो 6 करोड़ है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर ये टर्नओवर 50 करोड़ होगी, ठीक है। द कंपनी filed its income tax return for the financial year ended 31st March 2020 before 30th September 2020, that is before the due date of filing of return of income for the financial year 1920, before considering any extension. The company would prepare its financial statements for the period 15th February 2020 to 31st March 2021 and would get them audited from the statutory auditors. In case, please suggest which of the following would be correct. तो यहाँ पर अगर मैं आपको पहले केस समझा देती हूँ। केस क्या है, 15 Feb 2020 से 31 मार्च 2020 तक के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि उनको इनकम टैक्स रिटर्न अपनी फाइल करनी थी। उन्होंने कोई ऑडिट नहीं करवाया एज ऑन 31 मार्च 2020 तक का, ठीक है। उन्होंने अपनी रिटर्न चुपचाप से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी 30 सितंबर तक, तब तक कोई ऑडिट नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, उसके साथ साथ उन्होंने अपने पिछले वो जो 1.5 महीने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे उनको क्लब कर दिया और साथ में ही ऑडिट करवा दिया, ठीक है। तो ऑडिट कब हुआ है, ऑडिट हुआ है आफ्टर 31 मार्च 2021, नॉट बिफोर दैट, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है कि आंसर क्या करेक्ट है। लेट्स रीड द ऑप्शंस एंड देन वील डिसाइड। First option is the company would be exempt from tax audit for the financial year 1920. For 2021, the company would need Form 3CB under tax audit. सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या 31 मार्च 2020 तक एप्लीकेबिलिटी थी, 31 मार्च 2020 तक क्या कोई एप्लीकेबिलिटी थी फॉर दी व्हाट, टैक्स ऑडिट। तो टैक्स ऑडिट की जो लिमिट होती है वो होती है 1 करोड़ की, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए द लिमिट इज़ 5 करोड़। बट यहाँ पर टर्नओवर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो टर्नओवर है वो है 6 करोड़। इसका मतलब आपको टैक्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट थी एज ऑन 31 मार्च 2020। 2020 के लिए भी आपको क्या कराना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका 1.5 महीने का ही पीरियड था। अच्छा, मैंने एक चीज़ गलत बोली थी, उसके लिए मैं अपोलोजाइज़ करती हूँ। मैंने क्या चीज़ गलत बोली थी बताती हूँ। मैंने बोला था कि उन्होंने जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए ना वो 15 Feb 2020 से 31 मार्च 2020 के भी बनाए, नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया 15 February 2020 से 31 मार्च 2021। लेकिन उनका जो टैक्स ऑडिट हुआ होगा वो फाइनेंशियल ईयर वाइज हुआ होगा। फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका कौन सा आ गया, जो 31 मार्च 2020 तक के फिगर्स थे या 31 मार्च 2020 तक की जो ट्रांजैक्शंस थी, ठीक है। ओके, नाउ अब इसमें बताओ टैक्स ऑडिट क्या आपका फाइनेंशियल ईयर 1920 में एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है। क्यों, क्योंकि लिमिट एक्सीड कर रही है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में एप्लीकेबल होगा। लेकिन अब बात ये आती है कि ऑडिट कौन से ईयर में हो रहा है। ऑडिट हो रहा है 31 मार्च 2021 के बाद, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता होगी कि जब भी किसी भी एंटिटी का ऑडिट होता है तो उनको फाइल करनी होती है 3CA। क्या फाइल करनी होती है, 3CA, अगर किसी और लॉ के अंदर किसी एंटिटी का ऑडिट हो रहा होता है।
लेकिन अगर ऑडिट नहीं हो रहा होता पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है, स्टैट्यूटरी बेसिकली कोई और ऑडिट नहीं हो रहा लेकिन टैक्स ऑडिट हो रहा है, तो उस केस में 3CB फाइल करना होता है। तो एक चीज़ बताओ, फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए आप क्या कहोगे कि क्या उस पर ऑडिट एप्लीकेबल था या क्या उस पर्टिकुलर एंटिटी का 31 मार्च 2020 तक के लिए ऑडिट हुआ था? नहीं। जब टैक्स ऑडिट हुआ उस टाइम पर कोई भी और ऑडिट नहीं हुआ था इस पर्टिकुलर एंटिटी का, तो उस केस में फाइनेंशियल ईयर 1920 में तो इस कंपनी को, इस एंटिटी को क्या फाइल करना होगा? 3CB। लेकिन सिंस नेक्स्ट ईयर उसका ऑडिट हो रहा है तो उसको नेक्स्ट ईयर क्या फाइल करना पड़ेगा? फॉर्म 3CA। ठीक है, तो लेट्स सी ये वाला ऑप्शन कहाँ पर दिया हुआ है, हम वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। द कंपनी वुड बी कवर्ड अंडर टैक्स ऑडिट फॉर बोथ द ईयर्स, इट वुड नीड फॉर्म 3CA फॉर बोथ द ईयर्स। देखो यहाँ तक ये लाइन ठीक लिखी थी कि दोनों सालों के लिए ही कंपनी पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, येस दिस इज करेक्ट, बट उसको दोनों सालों के लिए 3CA नहीं फाइल करना। क्यों? क्योंकि जब वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 1920 की फाइल कर रहा है उस टाइम तक ऑडिट नहीं हुआ, और जब ऑडिट नहीं हुआ तो डेफिनेटली 3CA एप्लीकेबल नहीं होगा, 3CB फॉर्म एप्लीकेबल होगा। Next option, the company would be covered under tax audit for both the years. It would need form 3CB for both the years. No, 3CB नहीं होगा, 3CA चाहिए होगा 2021 के लिए और 3CB चाहिए होगा 1920 के लिए। The company would be covered under tax audit for both the years. It would need form 3CB for financial year 1920 and form 3CA for financial year 2021. So this is the correct option. Which is the correct option? D is the correct option. I hope आपको समझ आया कि क्यों D ऑप्शन सही है। ठीक है, आई होप आपको सारे के सारे MCQs अच्छे से समझ आए हैं। मैंने कोशिश करी कि मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ, सारे MCQs के ऑप्शंस को जस्टिफाई कर पाऊँ, आपको रीजंस दे पाऊँ। तो आई होप आपको समझ आए हों। अगर आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार कर दो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू in the next video very quickly. So that's all for today guys. Bye bye.